चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे, सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग बाय मिस्टर बेंचिनो मसारो, द वेरी हैंडसम मिस्टर बेंचिनो मसारो। एंड ये हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं इस किताब का, जिसमें वो हमको समझा रहे हैं कैसे पैरेलल रियलिटी से करंट रियलिटी हमको क्रिएट करनी है, जो आपके डिजायर हैं वो कैसे फुलफिल करने हैं, ये हम सीख रहे हैं। एंड माय ब्यूटीफुल फ्रेंड अनु चटवाल फ्रॉम सिंगापुर इज रीडिंग फॉर अस। Thank you, Dipti. थैंक यू। गुड मॉर्निंग। Good morning. There is no reality outside of consciousness. There is no projection or experience outside of consciousness. Another way of saying is nothing exists independently from consciousness. Objects and appearances do not have beingness, they do not have existence of their own. They depend on consciousness just as experiences in your dreams at night do. It's not that objects and appearances in your dream exist, that you go and visit them and then you leave and they still exist. You project that you are going somewhere, but it's all happening inside, absolutely still, motionless consciousness. You are the universe. That is the basic idea, the basic realization. You So will, Anu, this is you are the center of the sorry, universe. I'm sorry. Uh, you are the center of the universe. That is the basic idea, the basic realization you will have. I won't go too deeply into that now because it is whole different topic in and of itself. I am assuming you have some familiarity with that. Even if you don't believe that it is true from now, just assume that consciousness is what you are. It is what is listening to my voice. It is what you can't escape, no matter how hard you try. You can try, run away from this meeting room, and you will still be conscious. You can be hit by a car and you will still be conscious. You can talk to your mother and you will still be conscious. Maybe a little less conscious, but you will still be conscious. So I'm not. Consciousness is always here. Every experience you have meets of consciousness inside of you. You can never change you. You can never leave you. You are inescapable. You as consciousness, you as awareness, you as the witness are inescapable. You are sentinels, you as beingness are inescapable. Feel into that moment. Just stop thinking for 2 to 5 seconds. Give away all your thoughts and notice the space that remains, the clarity, the consciousness that is still here. I am still, that still exists. They are obvious, overwhelming sense. I exist. Exists whether you're thinking or you're not thinking. But when you are not thinking, it becomes very clear that I exist. Exist independently from everything that appears. Regardless of what appears, you exist. Yeah. So Conscious, we'll just take sorry, a break, take a yeah, pause yeah, because बेंटिनो मसारो तो बहुत हैवी ड्यूटी इनका स्ट्रक्चर होता है, मेंटल स्ट्रक्चर, right, है ना। सो yeah, बेंटिनो मसारो यहाँ पे बता रहे हैं दैट हमारी कॉन्शियसनेस है, इन द सेंस अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस को वो अवेयरनेस में रहने को बोल रहे हैं, दैट चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी बीइंगनेस है ना, दैट आई एम, यू नो दैट आई एम देयर। लाइक अगर इफ आई एम सिटिंग हियर एंड इंटरैक्टिंग विथ ऑल ऑफ यू, तो हमको पता है दैट आई एम इंटरैक्टिंग विथ ऑल ऑफ यू। अगर मैं अपने किचन में जा रही हूँ, आई एम पिकिंग अप अ ग्लास टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, सो वो एग्जिस्टेंस है मेरा, कि मुझे ये पता है कि मैंने ग्लास उठाई है, मुझे ये पता है कि यहाँ से मैंने
आरओ से पानी निकाला है, आरओ में एक टैप लगा हुआ है, उसको मैंने प्लग अप किया और उसको मैंने पानी निकाला। मुझे ये पता है दैट नाउ आई एम गोइंग टू द बाथरूम। आई नो दैट नाउ आई हैव पिक्ड अप द सोप एंड आई एम वॉशिंग माय हैंड्स। आई नो कि यहाँ पे टाल रखी होती है, उस टॉवल से आई एम वाइपिंग माय हैंड ड्राई। फिर मुझे पता है कि वो बैल्कनी है, मुझे ये पता है टाइम क्या हो रहा है, मुझे ये मालूम है कि घड़ी कहाँ लगी हुई है वॉल पे वेर आई कैन लुक एट द टाइम। दैट मीन्स मेरी कॉन्शियसनेस लगातार मेरे साथ है और आप उससे अलग नहीं हो सकते, है ना। ये वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी बीइंगनेस होती है। सो बोल रहे हैं अगर हम पूरा पॉज कर दें कि ठीक है आउटसाइड का कुछ भी एनवायरनमेंट नहीं है, आई एम जस्ट सिटिंग हियर ऑन माय सोफा एट वन प्लेस, और मैं सब कुछ गायब कर देती हूँ अपने आसपास का, लेकिन आई स्टिल एम, I exist here, right? एंड आई एग्जिस्ट। अगर 5 सेकंड के लिए वो बोल रहे हैं कि आप अपनी आंख बंद करते हो, लेकिन आपको ये पता है दैट आप तो हो, आप आउटसाइड वर्ल्ड को गायब कर सकते हो अपने थॉट से, अपना इवॉल्व माइंड यूज करके, लेकिन यू आर, आई एम स्टिल एग्जिस्ट। उसी आई एम को अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं दैट यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आप पूरे ब्रह्मांड के बीच के वो बिंदु है ना। जैसे भगवान के टाइम जो हम जिसको हम गोविंद बोलते हैं, जब भगवान धरती पे होते थे, जब कृष्ण भगवान थे, जब अर्जुन थे, जब सारे भगवान धरती पे थे, राम भगवान, हनुमान जी, तब उनके कौन भगवान थे? उनके, वो हम उनको भगवान बोलते हैं, उनके भगवान जो थे वो गोविंद ही बोलते थे, है ना, कि गोविंद भगवान है। गोविंद कौन होता था? हमारी कॉन्शियसनेस। गु का मतलब होता है ब्रह्मांड, बिंद का मतलब होता है बिंदु, यानी कि एक पूरे ब्रह्मांड के बीच के बिंदु आप हो, आप ही गोविंद हो, आप ही भगवान हो। और पूरे ब्रह्मांड के बीच वाला जो एक डॉट है, सेंटर ऑफ द, जो बेंटिनो मैसारो बड़ी अच्छी रिफाइंड इंग्लिश में यो बता रहे हैं यहाँ पे, दैट यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सो यू हैव ऑल दैट पावर ऑफ द यूनिवर्स विद इन यू। तभी तो हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। आप सिर्फ इस वर्ड पे अगर फोकस करके मेडिटेट करते हो 2 से 3 मिनट के लिए, अहम मतलब मैं, ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही यूनिवर्स हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, राइट, अहम ब्रह्मास्मि। इस पे आप मेडिटेट करते हो नॉन स्टॉप व्हेन यू थिंक दैट आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि। एंड दिस इज व्हाट यू कीप रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, है ना, कुछ और सोच के नहीं। तो आप अपनी पावर के अंदर आप अपने आप को समझते हो एंड वी स्टार्ट गोइंग इनवर्ड्स। और अहम आई एम, इसी का मतलब होता है एमेन, आमीन और ओम। जो बोलते हैं, कहते हैं ना, ओम इज द लैंग्वेज, ओम इज द लैंग्वेज, यूनिवर्स की भाषा होती है। और इस्लाम रिलीजन में आमीन बोलते हैं उसको, और इन क्रिश्चियनिटी वी कॉल इट amen. It just means that I am, I exist. We are such a powerful consciousness. बेंचिनो मसारो हमको ये समझा रहे हैं that आपके पास यूनिवर्सल फोर्सेस, ताकत, ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर है जो अभी अनयूटिलाइज्ड है। आगे जाके वो बताएंगे वो अनयूटिलाइज्ड है क्योंकि हम अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स और अपने एनवायरमेंट के वजह से स्वे हो जाते हैं, हम हिल जाते हैं। हमारा एनवायरनमेंट कभी कभी हमको कंट्रोल करता है, जो हमारे सिचुएशंस है लाइफ के, पैसा, प्रॉब्लम, ये हेल्थ। बट ही सेज यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज यू हैव दैट पावर टू क्रिएट, और आप क्रिएटर हो। आप सफरर नहीं हो कि आपको कुछ भुगतने की जरूरत है। आपको जो चाहिए आप क्रिएट करो, सब ठीक हो जाएगा। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अभी तक। हाँ जी, अनु। Consciousness never be escaped. It is the ground of all experiences, the meeting point of all experiences. In fact, it is the center of the universe. So imagine that when this consciousness, there is availability of infinite possibilities or infinite possible configurations of energy. Energy, which is one of the aspects of consciousness, conscious energy, can shape into whatever is possible.
On a universal cosmic infinite scale, everything that can ever exist already exists. Any possible configuration of energy that can never be created already exists. But your individual experiences is obviously not that vast. Your individual experience is determined by where you shift your consciousness. In this life, in this experience you're having right now, consciousness sets itself up in such a way that it constantly creates or shifts into a view of reality that looks very similar to the previous one, and then very similar to the previous one, and so on. It does this so that we can have the illusion of a linear timeline. But in fact, every single nanosecond is 100% completely different, completely new reality. It is not actually new because everything already exists, but it is new to you from your point of view, from your I am consciousness point of view. Yeah, The so movie thank you. I frames know we'll be वो analogy. आगे हम कल पढ़ेंगे. Today we'll study only so much. ठीक Thank है. you for your beautiful voice Thank and you. beautiful Thank you reading. so much. Thank you. So Thank इसमें you. Thank you so much. क्यों सो इसमें पेंचिनो मसारो हमको समझा रहे हैं दैट जब आप अपने कॉस्मिक वर्ल्ड में अगर आप देखो पूरे कॉस्मोस में पूरे ब्रह्मांड में एंड एज ही सेज दैट यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स राइट तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे समझा रहे हैं दैट जब आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हो और आपको कॉन्शियसनेस है आपके पास अवेयरनेस है तो आपके पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं इसी वक्त आप कुछ भी अचीव कर सकते हो है ना उन्होंने अपनी जिंदगी से बताया उन्होंने कितना अचीव किया 26 साल के थे छोटे बच्चे 26 साल में कितने या लाइक यू हार्डली यू स्टार्टेड ग्रोइंग एंड गोइंग इनटू द वर्ल्ड टू स्टार्ट वर्किंग 26 साल में वो उनको अवेकनिंग हो गई थी उनको ये पता लग गया था दैट वो एक भगवान के मैसेंजर के रूप में इस धरती पे पैदा हुए हैं और लोगों की जिंदगियां बदलना है उनका काम है ना वाइल एट द सेम टाइम वो कहीं पहाड़ों पे नहीं रहते वो इसी दुनिया में रहते हैं सारी नॉर्मल चीजें करते हैं जैसे नॉर्मल 26 साल का इंसान करेगा नाइट क्लब्स में जाना मस्ती करना गर्लफ्रेंड्स के साथ मस्ती करना सब करते हैं वो है ना देर इज नो गुड एंड बैड जजमेंटल तो हमने होना नहीं है कि ये सही है गलत है और सही गलत कुछ होता नहीं है सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है मुझे जो सही लगता है वो आपको गलत लगेगा है ना तो देर इज नथिंग विच इज कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग इसी दुनिया में रह के वो बता रहे हैं दैट आप अपनी इन कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करके अवेयरनेस में रह के अपनी पावर को समझ के जो आप इन्फिनिट पॉसिबिलिटी जो आपको अभी बहुत बड़ी ड्रीम लग रही है कि हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाना या ऑल ओवर अगेन दोबारा से हेल्दी हो जाना या एक परफेक्ट पार्टनर से शादी कर लेना या हीलिंग होना जो आपको लग रहा है दैट डॉक्टर्स हैव टोल्ड यू कांट हील बट यू कैन वेरी इजीली डू दैट यू नो वो तो मतलब अपनी बॉडी के साथ है वो तो बहुत आराम से क्रिएट हो जाता है सो दैट्स व्हाट ही सेज हियर दैट इन्फिनिट पॉसिबिलिटी और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो एवरीथिंग यू कैन डू और जो मैंने कल जो प्रिया सौम्या ने जो वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे वो टोनी रॉबिन्स का कोट मैंने बताया था कि टोनी रॉबिन्स का ही है वो टोटली उन्हीं की बात मुझे याद आई थी जब मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने उसमें भी यही बोला था यू डोंट एक्सपीरियंस लाइफ यू एक्सपीरियंस व्हाट यू फोकस ऑन ये टोनी रॉबिन्स हमेशा बोलते हैं और ये मेरे मेरे मेंटोर हैं वो है ना तो उनकी एक एक लाइन मेरे लिए पत्थर की लकीर होती है अगर वो बोलते हैं ऐसा इसका मतलब है दैट यू डोंट एक्सपीरियंस लाइफ यू एक्सपीरियंस लाइफ दैट यू फोकस ऑन आप जिंदगी में जिस चीज पे फोकस करते हो वो आपकी जिंदगी में इस वक्त है तो आपको चेंज करना है आपको नहीं पसंद आ रहा आपकी जिंदगी में क्या है फोकस चेंज कर दो इतना आसान है सेम टू सेम चीज आज अभी हमको बेंटिनो मसारो बता रहे हैं चेंज योर फोकस आप उस चीज पे फोकस करो और वो चेंज योर फोकस नहीं बोल के वो दूसरी इंग्लिश में बोल रहे हैं वो कह रहे हैं शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस अगर आपकी करंट कॉन्शियसनेस करंट एक्सपीरियंस आपको नहीं सही लग रहा
you are not really at peace with what's happening right now in your life. आपको चेंज करना है, आपको नहीं वो रिलेशनशिप समझ आ रही, आपको यू आर नॉट रियली सो हैप्पी विद द स्टेटस ऑफ मनी इन योर लाइफ, आपको लग रहा है मेरे पास और ज्यादा पैसा होना चाहिए, आपको ये लग रहा है दैट आई शुड हैव अ बेटर हेल्थ, आपको लग रहा है दैट आपको एक्स्ट्रा बॉडी फैट लूज करना है और आपको स्लिम टोन स्लेंडर बॉडी चाहिए, आपको लग रहा है ये हो वो हो वो हो वो हो, तो इन ऑल दीज केसेस अपना फोकस बदल दो, सिंपल, राइट? और शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, बेंजामिन मसारू की भाषा में ये, टोनी रॉबिन्स की भाषा में वो, मतलब तो सेम है, मतलब तो अलग अलग नहीं है ना। शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस और चेंज योर फोकस, जो आपको रेजोनेट कर रहा है आप वो करो, मतलब एक ही है, इसका मतलब जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हो वो बदल दो, है ना? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दैट मुझे ये वाला एक्सपीरियंस नहीं चाहिए अपनी जिंदगी का, दैट मीन्स अगर आप शिफ्ट करोगे, अब आप नई रियलिटी की तरफ देखो, प्रीवियस वन को डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट, ठीक है? नई रियलिटी के बारे में सोचो और उसी को ब्रू करो। और वो बता रहे हैं दैट उस वक्त हमको लगेगा दैट जैसे ही हमने अपना फोकस चेंज किया, हमने न्यू रियलिटी के बारे में सोचा, दैट थैंक यू दैट आई एम रिसीविंग रुपीज 20 lakhs और वट एवर एवरी मंथ विथ ईज, थैंक यू दैट आई एम रिसीविंग 10 lakhs एवरी मंथ विथ ईज, अगर ये वाला है, एंड थैंक यू दैट माई बॉडी इज सो परफेक्ट एंड सुपर हेल्दी, अगर ये वाला आपका फोकस है, थैंक यू दैट आई हैव अमेजिंग रिलेशनशिप विथ सो एंड सो पर्सन, थैंक यू वट एवर जो भी आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, दैट माई बिजनेस इज डबलिंग द सेल्स एवरी क्वार्टर, लाइक हर क्वार्टर पे मेरे बिजनेस का सेल डबल होता जा रहा है, मेरी बहुत अमेजिंग जॉब है जिससे मुझे बहुत आराम से 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो भी आपको करना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन भरपूर इंजॉय करो, है ना? जो आपको बिलीवेबल लग रहा है वो आपने नई रियलिटी को सोचा। एक्चुअली बेंचिनो मसारो बोल रहे हैं कि उसमें उसमें मतलब उसी वक्त वो क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और एनर्जी जो ब्रह्मांड की होती है वो एनर्जी अलाइन होनी शुरू हो गई है, आपका वो वाला फोकस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज अभी वो पैरेलल रियलिटी में है ना? पैरेलल रियलिटी मतलब अभी वो दिमाग में है, लेकिन आप चाहते हो ना उसको असलियत में देखना, ऑब्वियसली वुड वांट टू सी इट हैपन, असलियत में अपने आंखों के सामने देखना। तो अगर अगर वही वही जो पैरेलल रियलिटी है उसको आपकी एक्चुअल करंट रियलिटी बनाने में वो बोल रहे हैं कि कोई टाइम स्पेस और वो सब नहीं होता है, बिकॉज एवरीथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू नो, तो आपको लगता है कि वो अभी सामने नहीं है, बट एक्चुअली वो इल्यूजन है, वो 100% सामने है आपके ऑलरेडी, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस अभी मैच नहीं कर रही है उसको, इसलिए वो हमको नजर नहीं आ रहा सामने, क्योंकि अभी हम उधर फोकस उधर फोकस उधर, है ना? जैसे एग्जाम्पल है, जीपीएस में अगर आप लगाओगे कि मुझे मुझे साउथ एक्सटेंशन जाना है, अब साउथ एक्सटेंशन, साउथ एक्स पार्ट दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है साउथ एक्सटेंशन, लाइक अ कॉलोनी, तो उसमें अब साउथ एक्स 1 है, साउथ एक्स 2 है, दोनों ऑपोजिट साइड पर है, बीच में मेन रिंग रोड जाती है, कैन यू पुट, आप कहीं पहुंचोगे अगर आप साउथ एक्स डालोगे वहां पे, या आप जीपीएस में जयपुर में और डालोगे दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली, अब न्यू दिल्ली में कहाँ, इतना स्प्रेड आउट मैसेज थोड़ी देना होता है हमको यूनिवर्स को, है ना? डिफ्यूज्ड मैसेज है, आई हैव टू गो टू न्यू दिल्ली, वेयर डू यू वांट टू गो, यू वांट टू गो टू दैट पर्टिकुलर होटल जहां आपको चेक इन करना है, अगर चेक इन नहीं करना है तो क्या आपको किसी के घर, आपको किसी के घर जाना है, वहां का आप जीपीएस में डालोगे डेस्टिनेशन। इसी तरह से जिंदगी में जो आपकी डिजायर की डेस्टिनेशन है, डिजायर की डेस्टिनेशन कुड बी दैट आपको बहुत कंफर्टेबली 5 लाख रुपए रिसीव करने हैं हर महीना, ताकि आपके बहुत आराम से जिंदगी गुजरे और आपको पैसों की कभी भी, हमेशा आपके पास हर चीज करने को पैसा रहे, है ना? तो ये आपकी डेस्टिनेशन है, तो आप ये वाली डेस्टिनेशन डालो, ये फालतू की बातें सोचने की जरूरत नहीं होती है हमें, वो कैसे होगा, ये होगा, ऐसे होगा, जीपीएस में एक ही डेस्टिनेशन डाली जाती है, अगर आपको वहां पहुंचना है तो आप गूगल मैप पे वही डालो, वो आपकी डेस्टिनेशन है। रिलेशनशिप डेस्टिनेशन क्या है, दैट यू वांट टू एंजॉय द जॉय ऑफ रिलेशनशिप विद अ न्यू स्पाउस, योर पार्टनर, और यू वांट अ कंपेनियन और वट एवर इट इज, आप वो डेस्टिनेशन डालो। आपको हेल्थ गोल है, प्रिसाइजली आपको क्या चाहिए आप वो डालो, आपको कार खरीदनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा मॉडल चाहिए, वो वाला डाल दो। तो इस तरह से जब हम
दिस इज हाउ वी डू इट एंड इट्स ऑलरेडी, जैसे ही आपके मन में थॉट आता है वो ऑलरेडी क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है. सो हमको लगता है कि वो सामने अब नहीं आया है, बट बेंचनो मसारो बोल रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द पैरेलल रियलिटी. जैसे आपने थॉट किया वो ऑलरेडी है, बट आई एम कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्चुअली रियल है और वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा. तो वो ये समझाने की हमको कोशिश कर रहे हैं. और कल वाला बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, मूवी फ्रेम्स एनालॉजी. सो दैट इज व्हाट ही विल एक्सप्लेन टू अस इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. So yes, this is what we have for today.